very eye-opening topic, especially all of you are from intellectual background. This topic is very interesting and lot of information and very important message we get. So now we have a sweet devotee, sweet Akshay Prabhu. So by his bhakti and by his devotional quality and service, he have won the heart of many devotees. So he's very dear to many devotees and very dear to me. So actually Prabhu practice more in his life than he speak. Many times people speak but don't practice. But I see Akshay Prabhu for many years. So it's very humble and very genuine in his own approach and own life of practice. So and also taking lot of responsibilities, services along with his other responsibilities. So I'm very thankful to Akshay Prabhu for coming here with all of you for leading these festivals. So now, so this is the topic. Channel very nice here. Okay, so the topic is youth meant for enjoyment or enlightenment? We have our dear Akshay. Hari Bol. Hari Bol. So welcome Akshay Prabhu by loudly chanting 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. So all of you attend and then I'll call you for breakfast. ठीक है? तो breakfast उधर होगा. Breakfast के बाद थोड़ा rest रहेगा. And then next. मैटर है कि स्पिरिट है? मैटर हाँ? मैटर ये फोन एक मैटर है. ओके. तो मेरा हाथ जो है, is it superior than the phone? My hands and legs? Yes sir. Yes, because it is considered spirit. है ना? Similarly, what you say? My mind, which controls my hands and legs, it is superior to my hands and legs. Mind is controlled by what? पहले भी बोला था आप लोग. Intelligence. है ना? Intelligence के ऊपर है ego. इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. और ego के ऊपर है soul. समझ में आया? Matter, उसके बाद हमारा mind, then उसके बाद आएगा intelligence, ego and soul. So we'll go in this level of happiness. Okay, ठीक है? So yeah. So next level पे जाइए. Next is mental. Okay. So lowest level of enjoyment is sensual enjoyment. ठीक है? We are going from low to high. Okay. So now mind is the task manager of all our activities जो body में होता है. So mental platform. So can you give any examples of people who are on mental platform? Mental enjoyment. जो सोचते हैं मतलब एंजॉयमेंट करने की, जैसे ओवरथिंकिंग जगह साइंटिस्ट मतलब मेंटल लेवल में योगी मतलब सोच रहा था कि वहाँ पर जाएंगे, ये अच्छा, जो खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा है। जो साधना करते हैं वो लाइक मेंटल प्लेटफॉर्म पे वो कुछ होता है ज्ञानी कुछ अचीव करना चाहता है मटेरियली एंड वो अचीव हो जाता है. Mental class of people like he is almost there near. Who are more thinking, कौन ज़्यादा सोचते हैं? Philosophers, poets, है ना? कविताएं लिखते हैं, तो उनको उसी में आनंद मिलता है. Okay, that is mental platform. ठीक है, आप भी नोट्स बनाओ, बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो ये हो गया मेंटल. उसके बाद नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल. ओके, नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल. तो इंटेलेक्चुअल का एग्जांपल आपने बोला था, साइंटिस्ट पीपल आर देयर, अलग लोग हैं. साइंटिस्ट लोग कोई मैथमेटिशियंस है जो पीएचडी करते हैं. ऐसे भी लोग हैं जो पीएचडी करे कॉकरोच के ऊपर, ऐसी चीजों के ऊपर. पता है कॉकरोच को पीएचडी करे. इतना बार कॉकरोच के बारे में सोचेंगे
मृत्यु को टॉपर बने गया है उसको तो पीएचडी किया है ना समझ रहे तो ये हो गया इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पीपल ओके देन कम नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नेक्स्ट egoistic so egoistic का कोई एग्जांपल घमंडी It's like this profession, high profession. Okay. Just say leaders. इसको पोस्ट पोजीशन का बहुत ये रहता है MLAs, like MLAs ministers इस पोस्ट पोजीशन पर ego officers. है ना this ego is your happiness बॉस मैनेजर करेक्ट बॉस मेंटालिटी ईगो तो अब मेरा प्रश्न आप सब लोगों से है कि ये जो हैप्पीनेस का लेवल है ये टेम्पररी है कि परमानेंट है टेम्पररी है For this है ना ये सब टेम्पररी है सो वन हु इज अटैच्ड टू हैप्पीनेस नो उसको भी मजा नहीं आएगा यार ये जो 4 लेवल हमने डिस्कस किया ना अभी तक उससे मजा नहीं आएगा जैसे बिकॉज ऑल आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द माइंड ओनली माइंड इज अ टास्क मैनेजर हर एक चीज का ओके जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत बच्चे बोलते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है आज चैंटिंग करने का मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ करने का मैं तो मन मौजी हूँ अरे बेवकूफ तो मन का गुलाम है मौजी नहीं है मन कंट्रोल कर रहा है ना आपको समझ रहे और मन किस में है माया में है इट इज इन माया ओनली और माइंड में हम लोग सोल है शरीर नहीं है जैसे हम लोग रोज कपड़े बदलते हैं वैसे हम हर लाइफ टाइम में शरीर बदलते रह रहे हैं एक्चुअली एवरी मोमेंट वी आर चेंजिंग अवर बॉडी समझ रहे एवरी मोमेंट प्रभुपाद से एवरी मोमेंट वी आर गेटिंग ए न्यू बॉडी एंड व्हेन दिस बॉडी इज नॉट एबल टू फंक्शन एनी मोर वी अकॉर्डिंग टू आवर कर्मा वी गेट ए कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी ट्रांसमाइग्रेट every cell is dying in our body and new cell is coming and over 7 to 8 years of period our whole body will be changed not in a single cell will be there which was there 7 years back समझ रहे ना so because of transmigrating we are soul so the mind goes with the soul wherever it goes and because of the impressions in the mind we get the new body ठीक है clear है क्या ओके क्वेश्चन अब है तो आप लिख के रखिएगा लास्ट आंसर तो क्वेश्चन एट लास्ट ठीक है सो नाउ समझिए बहुत लोग हिंदुस्तानी लोग के बॉर्डर पे है पाकिस्तानियों से बहुत उनको जलन होती है उसके बारे में सोचते रहते हैं नेक्स्ट लाइफ में वो इंप्रेशन बना हुआ है माइंड में ये क्लियर होगा ना कैसे ही करता है और नॉट ओनली और पास्ट लाइफ पास्ट सो मेनी लाइफ टाइम्स के इंप्रेशन है सब माइंड में स्टोर्ड है ओके फॉर एग्जाम्पल लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज माइंड the definition लिख लो important है mind is a storehouse of past unfulfilled desires past experiences and future planning यही mind का मतलब काम है storehouse of unfulfilled desires past experiences and future planning और because of this mind only we were also hog, dog, cockroach, all these things we have become before lack of species. So Prabhupada gives very good example of camel in Bhagavad Gita. So camel को आपने देखा है ना? तो camel रेगिस्तान में क्या करता है? जाके it eats cactus. Okay, cactus को खाता है. वो उसका खाना है. तो when it eats the cactus में क्या होता है? कांटे होते हैं. So those thorns they pierce into his mouth and blood oozes out of it. और वो जो खून है वो कैक्टस के उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसको लगता है कि सो स्वीट बहुत आनंद आ रहा है मुझे मजा आ रहा है तो क्या कर रहा है खुद का ही खून खा रहा है समझ रहे खुद का मुंह से खून निकल के खा रहा है और उसको लग रहा है कि उसको उसमें मजा आ रहा है समझ रहे सो दिस इज हाउ मीन्स हैप्पीनेस इज देयर इन द मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो ऑलवेज इट इज लाइक ड्रिंकिंग अवर ओन ब्लड Just for example, why this analogy is given because human beings, especially youth, they are doing the same thing. What is the highest happiness in this lifetime, in the human life, in temporary material body is maximum people they discharge semen. They feel बहुत अच्छा लग रहा है आनंद आ रहा है but they don't know 1 drop of semen is equal to 80 drops of blood according to Ayurveda. शास्त्रों में लिखा गया है यू नो इसमें या माधव प्रभु गिव दिस सेशन लास्ट टाइम ओके इट इज सो पावरफुल द जिस्ट ऑफ ऑल द एनर्जी ऑफ आवर बॉडी सो पावरफुल इट कैन गिव
a form to a new body. That is the power in the semen. But uselessly, everybody, youths are discharging semen. See? और उसको लग रहा है कि हम खुश है, एक कैमल के जैसे खुद का खून ही वो लोग वेस्ट कर रहे हैं. You know how semen is formed? Just blood होता है, मतलब पूरा प्योर होके select करना. Bone marrow में You जाते write it down. It's very important. The 7 steps in which semen is formed. Okay. तो जो भी हम लोग खाते हैं, it converts into plasma और रसा. Okay. फिर जो प्लाज्मा और जो रस है, ये कन्वर्ट होता है ब्लड में, रक्त. And then the blood gets it converted into muscle, मांस. And then प्लाज्मा कन्वर्ट वो बॉडी का प्रोसेस है. वो कहाँ से बनता है? खाने से, जो भी हम खाना खाते हैं. Then this muscle into fat, मेद जिसे बोलते हैं. And then from there to bone, अस्थि. And then inside the bone marrow, उसको बोलते हैं मज्जा. And then from bone marrow it becomes semen. See, इतना बॉडी को प्रोसेस कर करके इट्स लाइक अ प्योरेस्ट थिंग. Okay. बट This thing. Eating plasma, हाँ. muscle, प्लाज्मा, ब्लड, मसल, blood. फैट, Plasma after plasma. blood, then muscle, then fat, then bone marrow. I was not able to show this in the slides, but I separately made a note of it. Can I? And then slides में नहीं. Then it comes reproductive. So whenever one loses the semen, no, the whole mind gets agitated. Our nervous system, no, जो लोग ज्यादा ये सब करते हैं उनका हाथ आप देखेंगे कांपता है, पैर ये होता है. नर्वस सिस्टम जल्दी हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, एकदम मतलब इंटेलिजेंस डल हो जाता है. सब कुछ चला गया, आपका बॉडी में जो वाइटल चीज चला गया. And those who preserve the semen, no, you see, they can memorize things very quickly. Grasping power ज़्यादा होगा, focus अच्छा रहेगा एक चीज पे, because the semen goes up and it will go and it will nourish the brain tissues. समझ रहे? This is the effect. अगर आप नीचे से उसको वेस्ट कर देंगे, semen actually meant only for reproduction, but today's whole world designed in such a way that you enjoy like a camel. खुद का ही खून पियो, खुद का ही खून वेस्ट करो. Like dog. समझे ना? Like dog is also eating bone. So these kinds of impressions are stored in us from many lifetimes. That's why we do such wrong activities, है ना? ठीक है. So next slide में क्या है? So spiritual. So highest platform is spiritual. Okay. So first is mental. ध्यायतो विषय पुंसात्. Meditate on the objects. तो कैसे होता है कि you meditate on the objects first and then you want to feel the object. Thinking, willing, मुझे object चाहिए, and then feeling, I want to feel. So get the object, and in this way, next slide में जाओ. Sense spiritual. Next. तो ये जो भी enjoyment is flickering only. Flickering. दिख रहा है? भागवत गीता का एक श्लोक है 5.22. So can someone read? Rohan. So translation पढ़ो, translation. An intelligent person does not take part in the sources of misery, which are due to contact with the material senses. Son of Kunti, such pleasure have a beginning and an end, and so the wise Does not delight. Wise man does not wise man Delight. does not Delight in them. in them. देखा, अगर आप इंटेलिजेंट है तो अब इसमें फंसेंगे नहीं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट एक फोटो आएगा देखो. हाँ, तो अभी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? ये सारे से अभी आपको पता है आप लोग हैं. हाँ, लग रहा है सारे तरफ से फंस गए. क्या है क्या मतलब आपको दिख रहा है इस फोटो में? देखिएगा. एक इंसान चल तरीके से फंस गया. इंसान क्या हुआ है? फंस गया है चल. एक वो इंसान enjoy कर रहा है लेकिन चारों तरफ से फंसा हुआ है. एक इंसान एक वेल में गिर गया जिसमें एक पेड़ है और उस पे लटका हुआ नीचे सांप है, ऊपर निकलेगा तो शेर है. And you want to taste the honey. And you want to taste the honey. अगर और ऊपर उसके जाए तो शेर मधुमक्खी- है, अगर नीचे जाए तो सांप है, ऊपर वहाँ रहेगा तो मधुमक्खी खाएगा. और ऊपर रहेगा तो कोई देखिए, Till I'll you want to taste the honey. I'll explain this situation to you. एक कहानी आपको बोलता है इसके बारे में. तो वो एक रिसर्चर था
रिसर्च करने के लिए गया था फॉरेस्ट में, रहते हैं ना नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, ये लोग सब जाते हैं। तो हाँ वेरिल्स तो अलग ही है, अकेला गया था। सीरियल हाँ, अकेला गया सब कुछ करने के लिए, और फिर अचानक से उसको पता चला कि somehow there is a tiger following me. ओके, एक टाइगर मुझे फॉलो कर रहा है, और देख लिया, डर के भागने लगा। टाइगर फॉलो कर रहा है, टाइगर उसके पीछे पीछे भागने लगा, और क्या करे, देखा तो सामने कुआं, तो छलांग लगाने का ट्राई किया कुआं के ऊपर से, तार गिरे से छलांग लगाने का ट्राई किया, नहीं हुआ, फंस गया, वहीं पर लटक गया। वहां पर एक पेड़ था, पुराना पेड़, टूटा हुआ पेड़, उसको लटक गया। अभी वो पेड़ कुएं के अंदर लटका हुआ है, नीचे क्या है, देखा तो पाइथन है। पाइथन तो सीखेंगे अभी आपके इस लैंग्वेज में। नीचे वही पाइथन खड़ा हुआ है, दैट वाज द पाइथन ओनली, लाइफ खराब कर देगा बाद में, देखो और मैं सीख रहा हूँ। बहुत सारे आईटी के लोग का लाइफ दिमाग खराब कर दिया पाइथन ने। नीचे पाइथन है और ऊपर से शेर है, और लटक गया ना, तो उसके ऊपर एक हनी बी का ये था, हाँ, वो लोग डिस्टर्ब हो गए। हाँ, वो लोग अभी घूम रहे हैं, और वहां पर दो चूहे हैं। ओके, एक बार देखिए ना ये क्या बोल रहा है। चूहे का पेट काट रहे हैं। वहां पर दो चूहे हैं, तो ये चूहे उस टहनी को काट रहे हैं, द ब्रांच को जहाँ पर लटका हुआ है। और आप में से किसी ने हनी बी का चुम्मा खाया है कभी? हाँ? एक दो बार लगा है, क्या होता है उसके बाद? पूरा मुंह फूल फूल जाता है। जाता है, और हम हनी खा के उसको चुम्मा दे रहे टाइम टाइम पे आके, समझ रहे हो? देखिए कितना सफरिंग है मटेरियल वर्ल्ड में। तो एनालॉजी में क्यों यहाँ पर आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि सिग्निफिकेंस क्या है कि वो जो इंसान है ना, वो एक्चुअली हम लोग ही है, ठीक है। और हम लोग इसी प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत, इस मेटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, लटक रहे हैं मेटेरियल वर्ल्ड में। पीछे से मौत कभी भी आ सकती है, क्या गारंटी है? बाहर निकलेगा तो क्या होगा, मर जाएगा, शेर खा लेगा, हाथ छूट गया, गिर गया तो नीचे पाइथन से वैसे मर जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग लटके हुए हैं, और हम लोग को क्या लग रहा है कि ये मेटेरियल बॉडी है ना, ये हमें सेव करेगा इस डेथ से। तो मेटेरियल बॉडी इज कंपेयर्ड टू दैट ब्रांच ऑफ ट्री, उसको पकड़ के रखे हमारे शरीर, हमारा शरीर ही हमें सेव करेगा। शरीर को फिट रखो, एक्सरसाइज करो, सब कुछ करो, शरीर ही हमें सेव करेगा। शरीर बचा पाएगा हम लोग को? कितना टाइम तक शरीर रहेगा हमारे साथ? 60 साल 70 साल, और हम लोग को लगता है हमें शरीर बचा के रखेगा, वैसे लटक रहा है यहाँ पर। और हर एक दिन और रात कैसे दो चूहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चूहे, दिन और रात जैसे जाते रहता है, हमारा आयु कम होते रहता है, हमारा मेटेरियल बॉडी गेट्स डिस्ट्रॉइंग डे बाय डे। इट्स लाइक अ लिथियम आयन बैटरी, जैसे कंपनी से बाहर निकलेगा उसका लाइफ स्पैन स्टार्ट हो जाएगा डिग्रेडेशन का। हमारा बॉडी वैसे ही है, वो पेड़ कभी भी टूट सकता है, वो चूहे उसको काट रहे हैं पेड़ को, और हर मोमेंट में वो हनी भी आके उसको चुम्मा दे रहे, पूरा मुंह सूज गया, हाथ पैर सब सूज रहे। पर क्या इस सब के बीच में क्या है कि एक ड्रॉप हनी उसके जीभ में गिर गया, टेस्टी हनी। तो ये सब एक ड्रॉप हनी गिर गया, और जो जिस सिचुएशन में है उसको भुला गया पूरा, वो हनी के टेस्ट को लेके, और ये कर रहा है, और एक हनी, और एक ड्रॉप आना चाहिए, फिर से एक और ड्रॉप आया, फिर से उसके लिए हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, फिर से एक और ड्रॉप। तो क्या सफरिंग है कि एंजॉयमेंट है? क्या है? सफरिंग है। और उसको क्या लग रहा है कि एंजॉय करो। वो एक ड्रॉप हनी के लिए देखो, वो इतना सफरिंग करके भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सफरिंग कर रहा हूँ, समझ रहे? तो ये आनंद एक्चुअली है नहीं। तो रियल डेफिनेशन आनंद का क्या है कि इट इज ऑलवेज अनमोटिवेटेड, ओके, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज अनइंटरप्टेड। This is the real definition of happiness. Unmotivated, it will keep on increasing and uninterrupted. This is the definition of happiness. तो बहुत जल्द मरने वाला है, हम लोग भी वैसे ही बहुत जल्द मरने वाले हैं. Death can come at any time, but we are just about this going about the temporary flickering pleasure of the material world. समझ में आया हम लोग का सिचुएशन क्या है मेटेरियल वर्ल्ड में? उसके पहले जो श्लोक पढ़ा था रोहन आपने, उसमें क्या बोला था? इंटेलिजेंट पीपल विल नॉट गो आफ्टर दिस मटेरियल फ्लिकरिंग प्लेजर। अगर बुद्धिमान है तो क्या करेंगे? कुएं से बाहर आने का प्लान करेंगे, राइट? कि वो हनी बी का रस टेस्ट करने का प्लान करेंगे, क्या करेंगे? बाहर आने। दिस इज इंटेलिजेंस एक्चुअली, है ना? नेक्स्ट स्लाइड। एक और यहाँ पर उदाहरण देखिए, ये तो आप लोग पता ही, आई थिंक वेरी फेमस एग्जांपल, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग। तो एक गधे के
सिर के ऊपर एक डंडा बांध के वहां पर कुछ गाजर घास सब लटका के रखा है, और वो गधे को लगता है कि आई विल गेट दैट ग्रास, हाँ रेडिश ग्रास, आई विल गेट दैट। वो थोड़ा ही आगे है और एक कदम आगे जाएगा तो वो एक कदम आगे चला जाएगा, उसको ऐसे लग रहा है बस थोड़ा आगे, बस थोड़ा आगे और आगे चल लूंगा। और ये सब फायदा उठा के क्या करते हैं, वो गधे का मालिक उसके ऊपर लोड के भर के लोड बोझ डालते जाते हैं, और तो है तो गधा ही है ना। तो आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, वो भी आगे जा रहा है। तो वो जो मालिक है उसका, जिसको लोड डाल रहा है, वो है माया, और वो गधा कोई नहीं, हम लोग ही है। और थोड़ा कर लूंगा प्रमोशन मिल जाएगा, और थोड़ा मेहनत कर लूंगा हो जाएगा। और वो प्रमोशन के चक्कर में ना, दिस इज ऑल मेंटल हैप्पीनेस ओनली। बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा ऐसे मेंटल लेवल पे रहते हैं, ओके आई डू सम ओवरनाइट, नाइट शिफ्ट कर लूंगा, 600 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा पर नाइट शिफ्ट का। वो 600 रुपए के लिए तुम लाइफ अपना हेल्थ खराब कर दोगे, वो समझ में नहीं आ रहा है उसको। और थोड़ा कर लूंगा प्रमोशन मिल जाएगा, बॉस से एप्रिसिएशन मिल जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सिंपल थिंग लाइफ विल बी टोटली स्पॉइल्ड। गधे के जैसे गधे बन के रहे हम लोग, सब लोग समझ रहे हैं कैसे। और ये हम लोग क्या इस लाइफ टाइम से गधे नहीं है, इतना तो बहुत लाइफ टाइम से यही कर रहे हैं। गधा क्या कर रहा है, उसको लग रहा है कि उसी को खाना है, खाने के लिए उसको आगे जाना पड़ेगा एक कदम, पर वो मिलेगा क्या, नहीं। तो वो हैप्पीनेस को रॉन्ग जगह पे ढूंढ रहा है ना। सही जगह है क्या वो, नहीं रॉन्ग जगह है। हम लोग वही चीज कर रहे हैं, इसके लिए हम फंसे हुए हैं। हर एक चीज में हैप्पीनेस, लैपटॉप मिल गया ओके में हैप्पीनेस है, मैं कुछ खरीद लिया, नया जींस टी शर्ट खरीद लिया, थोड़ा आनंद मिल गया। रॉन्ग जगह पे ढूंढ रहे, इसके लिए हैप्पीनेस मिलता नहीं है, समझ रहे। एक्चुअल हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल लाइफ, बट वो पता नहीं। गधा अगर देखेगा थोड़ा मुंडी हिला के, बाजू में इतना घास सब कुछ है, वो ही खा लेगा ना जाके, वो तो इतना आसान है, पर नहीं, गलत जगह में ढूंढ रहा है। हम लोग सब लोग यही गधे केस है, टेम्पररी थिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड, ये समझ में आ गया राइट आपको। सो एनलाइटनमेंट एंड एंजॉयमेंट करो, एनलाइटनमेंट फर्स्ट एंड देन एंजॉयमेंट नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट स्लाइड पूरा नेक्स्ट में चले जाओ। Why did Lord make this world? एंजॉयमेंट और एनलाइटनमेंट, वो टॉपिक स्लाइड पे आ जाओ। एंजॉयमेंट आया तो इट फर्स्ट पॉइंट, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। Any enjoyment without enlightenment, it leads to, first point में it leads to destruction. You know, अगर आप कोई हावड़ा स्टेशन पे सियालदह स्टेशन पे जाएंगे, ये कोई यंग भिखारी आएगा समझो आप आजू बाजू में, ठीक है, देखिए उसको आजू में जाके स्मेल करके देखिए, उसके बॉडी में से स्मेल है डेंड्राइट पता है आपको, डेंड्राइट जो प्लास्टिक को चिपकाने के लिए देखा किया जाता है। वो छोटे छोटे बच्चे वो नशा करते हैं, वो हाँ, पूरा बॉडी से डेंड्राइट का स्मेल आता है। दे देता है, वो खा लेता है, डेंड्राइट खा लेंगे, पाव के बीच में डाल के डेंड्राइट खा लेंगे, उसको खाने के लिए होता है। हाँ, उसको ये करके प्लास्टिक का स्मेल लेते हैं डेंड्राइट का, आग में देते हैं, फिर वो उसका स्मेल लेके नशा में चले जाते हैं। Oh, even eat more than dangerous than drugs. Like पर वो लोग को नशा मिल रहा है उसका डेंड्राइट से। इसको यूरोपिया मीन्स अ टेम्पररी स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक नशा। उसके लिए बच्चे यंग लोग, भिखारी लोग, कुछ नहीं है, डेंड्राइट से ये कर रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक दिस ड्रॉप ऑफ हनी व्हिच विल लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, लाइफ पूरा वेस्ट कर देंगे। देखा। देन नेक्स्ट, आप लोग को पता है ना स्लाइड में नेक्स्ट, बिल क्लिंटन है ना। बिल क्लिंटन, यू नो हु वाज बिल क्लिंटन? नहीं पता? बिल क्लिंटन, ओके, हु इज द सुपर पावर नाउ? अमेरिका, USA. So the most powerful country of the whole world and the most powerful man of that country, कौन है? President. Bill Clinton was the president of USA. Most powerful man on the entire planet, super power का आदमी, president. Now who is the president? Joe Biden. So he is the most powerful, actually the most powerful, influential person entire world. But such a most powerful person, he also got bewildered. He also got suffering, miserable, because he was not able to control his lust.
लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया और जाके अपने पीए का रेप कर दिया। लोगों ने उसको जूते का हार डाल के उसको जूते से मार के निकाल दिया। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी लस्ट से हार गया। देखिए कैसे बिल क्लिंटन का ये हो गया। यू कैन नॉट गेट सेव फ्रॉम दैट लस्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट? ग्रीड डिस्ट्रॉय हैंसी क्रॉन्चिक। पता है कौन है? पता है? ही वाज द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम। हाँ जी। इंडिया एक वर्ल्ड कप में आया था फाइनल्स में 2003 में। हम लोग देखे थे उस टाइम में क्लास 7 में ऐसे कुछ था शायद से 2003 में इंडिया वर्ल्ड कप, इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप हुआ। उसके पहले वाला वर्ल्ड कप में ये कैप्टन था साउथ अफ्रीकन टीम का 93 और या 2000 मैच फिक्सिंग में फंस गया। मैच से उसको ये कर दिया। क्रिकेट से पूरा उसका जो मेहनत से किया था, ग्रीड, पैसे का ग्रीड, मैच फिक्सिंग। और जो आईपीएल हो रहा है, क्या है आईपीएल? इट इज जस्ट ग्रीड, गैम्बलिंग है और कुछ नहीं है। और हम सब लोग उसमें इन्वॉल्व है। Almost every sport. आप लोग आईपीएल देख रहे मतलब इन्वॉल्व इन गैम्बलिंग। यू आर एक्चुअली गैम्बलिंग, समझ रहे? बिकॉज दे आर मेकिंग मनी बाय प्लेइंग देयर इमोशंस एंड यू आर गेटिंग चीटेड। हम सब का चीटिंग किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। और हम लोग उसको समझ रहे कि वो अच्छा है। गैम्बलिंग देखो, गैम्बलिंग का ये रिजल्ट क्या है? हेल। और हम पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं। लगता है मैच दिखा रहे, मैच वो गैम्बलिंग कर रहा है। बिकॉज ऑफ यू सो मेनी पीपल आर डूइंग मनी। क्यों? कि आपके वजह से, कि आप देखना चाहते हैं। गैम्बलिंग, इमोशनल गैम्बलिंग हो रहा है आप लोग के साथ, पता नहीं है पर, और रिजल्ट तो पता ही फिर क्या है। इसलिए नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट गेट द नॉलेज देन life is going to be, next life will be totally full of misery and suffering. पता नहीं किसी को तोड़ के नहीं जाने आगे। तो क्या ट्रैफिक पुलिस को माफ करेगा? पकड़ ही लेगा। तो लॉ पता नहीं तो क्या हो, जुर्माना देना ही पड़ेगा। सेम चीज इन दिस थिंग आल्सो, इज अ लॉ ऑफ आवर लाइफ। एक और ये था मोहम्मद अजहरुद्दीन 1996 पिक्चर आया था से उसके ऊपर शायद से कोई, आई डोंट नो, मैच फिक्सिंग किया था। उस दिन बहुत लोग का टीवी टूट गया। इंडिया वर्ल्ड कप में जाके भी हार गया बिकॉज मैच फिक्सिंग। इंडिया श्रीलंका मैच 1996 के वो दौर में इसलिए तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया श्रीलंका उस बार ट्रॉफी। बहुत लोग ये किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट कौन है? माइक टायसन। इसको तो आप जानते ही हैं, बॉक्सर, वेरी फेमस पावरफुल बॉक्सर। बोला था कि हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। आई एम द ग्रेटेस्ट। तो मोहम्मद अली हो गया वो ग्रेटेस्ट शायद से। नॉट माइक टायसन। वो इतना उसको गुस्सा है ओपोनेंट के तरफ, तो जाके उसका कान काट लिया जोर से। किसने काट लिया? माइक टायसन इतना गुस्सा आया ओपोनेंट के तरफ बॉक्सिंग में, उसका कान काट ले जाके, डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्ट्रॉय हो, लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया पूरा। इतना ये सब पावरफुल पीपल है, टॉप लेवल पीपल है। बच पाए क्या वो लोग? लस्ट, एंगर, ग्रीड की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। फुटबॉलर भी था ना वो फाइनल में, हाँ, फ्रांस का फुटबॉलर था एक, ज़िनेडिन ज़िडान। It was like everybody was like France will win the World Cup now. फुटबॉल एकदम इतना क्रेज हो गया था, फ्रांस जीतने ही वाला था। वर्ल्ड कप के जस्ट पहले मैच में जाके उसने फाइनल में अपने क्या बोले हेड से किसी को स्पीयर दे दिया ओपोनेंट प्लेयर को। दैट्स ऑल, डिस्क्वालीफाइड। फ्रांस हार गया अगला दिन का मैच। One person anger destroyed the whole country, was crying because of that person. महाराज का बोल रहा था 1 मिनट का सही एक सेकंड का 1 सेकंड का सही था आपको बचा कल क्लास में आपने देखा ना, टॉलरेट फॉर 1 सेकंड। वो 1 सेकंड से टॉलरेट नहीं किया तो पूरा लाइफ चला गया उसका। देखिए ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो व्हाट इज रॉन्ग विद दिस एंजॉयिंग मेंटालिटी? ये सब लोग को एंजॉय करना था, पर क्या रॉन्ग है? ऑल मटेरियल एंजॉयमेंट इज टेम्पररी, मिजरेबल एंड इल्यूजरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितना मटेरियल एंजॉयमेंट है, दिस इज जस्ट टेम्पररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरी। समझ रहे? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वहां से करोगे, ठीक है। The body is temporary. हाँ, पूरा पॉइंट्स में कर दो। आप समझ आए भगवान क्यों बोल रहे थे?
और भी कुछ एग्जांपल्स है, समय हमारे पास कम है, इसके लिए मैं आई विल जस्ट गो लिटिल बिट क्विकली. सो आई गिव यू सम एग्जांपल्स. जैसे कि इल्यूजरी, टेम्पररी समझ गए ना, टेम्पररी अंडरस्टूड. फर्स्ट पॉइंट टेम्पररी, जो अभी तक मैंने बोला, कैसे वो आदमी लटक रहा है, मिजरी पा रहा है. गधा, हम सब लोग गधा है. जो कैनेडी, वो भी प्रेसिडेंट था, उसके बारे में कैनेडी साउथ अफ्रीका, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. तो बोला था ना एग्जांपल. सो अभी तक मैंने आपको हुआ टेम्पररी समझ में आ गया. लेट मी एक्सप्लेन इल्यूजरी और मिजरेबल क्या होता है. सो इल्यूजरी मींस, समझिए जॉब मिल गया, 5 साल हो गया, प्रमोशन मिल गया, अभी क्या करना है, कार खरीदना है ना. शादी के ऊपर थोड़ा कार भी रहेगा तो एक इंप्रेशन रहेगा. तो कार खरीदने के लिए बहुत सारे रिसर्च करेंगे, अलग अलग चीज देखेंगे, कौन सा मोटर है, कौन सा माइलेज है, क्या है, पेट्रोल का लेंगे, इलेक्ट्रिक लेंगे, डीजल लेंगे, सब चीजें करेंगे. तो वो सब करते करते वो क्या है कि मेंटली सब सोच रहा है ना, तो मेंटली बहुत आनंद के समुद्र में स्विमिंग कर रहा है. कार लूंगा, सब कुछ करूंगा. और जैसे कार आ गया उसके बाद बेचारा फंस गया. अब उसको संभालना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा. किसी ने उसको स्क्रैच मार दिया, वो फोन किया, ट्रैफिक में गया, किसी ने हेडलाइट तोड़ दिया, पीछे से आके वो लाइट इंडिकेटर तोड़ दिया, उसका झमेला. तो कार जो उसको हैप्पीनेस देने वाला था, वो उसको एक बर्डन बन गया, है ना. उसी प्रकार बहुत लड़के लोग एजुकेशनल लाइफ में आते हैं कॉलेज में, पर सोचते हैं शादी के बारे में. ध्यान तो रहता ही नहीं पढ़ाई में. तो पहले एक उससे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा अच्छे से, ठीक है, क्लास में सबसे अच्छी दिखने लड़की कौन है, ओके, तो उसको जैसे करेक्ट करता हूँ, थोड़ा जाओ देखते क्या होता है करके. तो थोड़ा शाइनिंग मार के, थोड़ा इंटेलिजेंस ये वो करके, तो रिश्ता हो गया. अभी तो पहले इट विल बी लाइक अ चंद्रमुखी, वेरी नाइस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. देन शादी हो गया, शादी के बाद बन गया सूर्यमुखी. सूर्यमुखी पता है, सनफ्लावर फ्लावर कैसे एकदम अच्छे से. और जैसे टाइम चला गया आगे, ज्वालामुखी. अभी तो किसी मैरिड आदमी से आके पूछो, वो यही बात बोलेगा आपको. कोई आपका अगर फ्रेंड रहेगा मैरिड, आके पूछो, अंजनी ब्रो बेस्ट एग्जांपल, आके पूछो ज्वालामुखी है कि नहीं है, वो पूरा बोल देंगे आपको, किसी का भी सब बोल देंगे आपको. वो मैरिड, समझ रहे. तो उसी प्रकार टेम्पररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरी. समझ रहे ना. ओके. तो बहुत बार लोग ये सोचते कि घर बनाएंगे, कार ले शादी और अच्छे से घर बनाएंगे, घर बनाएंगे, खुद का जमीन खरीद लिया. मेरा एक दोस्त था, जमीन खरीद लिया घर बनाने के लिए. ही इज नाउ अर्निंग 23 lakhs पर एनम. ओरेकल में काम करता है, पैसा बहुत कुछ है. चलो एक लोन लेके एक जमीन खरीदा, सोचा घर बनाएंगे. देखा तो क्या जमीन का कुछ लफड़ा था उसमें फंस गया, चीटिंग किया ब्रोकर उसको. फिर वो सॉल्व करते हैं तो और पैसा चला गया, कोर्ट का प्रॉब्लम. अभी जब घर बना है तो बिल्डर को चीट कर रहा है, ये वो करके. अभी घर जब फाइनली बन गया, अभी घर का मेंटेनेंस करना है, एक चौकीदार को रखना पड़ेगा. अच्छा बड़ा बंगला बना है, चौकीदार को रखना पड़ेगा, वो सब करना है. उसके तो काम करना पड़ेगा उसको दिन रात. 23 लाख मिल रहा है ना, कंपनी जो बोले वो करना ही पड़ेगा. कंपनी विल से यू आर पेइंग 23 lakhs. If you call me 5 o'clock morning, you have to come at 5 o'clock morning. I will go out. जॉब छोड़ पाएगा, बंगला बना इतना बड़ा, मेंटेन करना है उसको, सफरिंग. टेम्पररी है. फिर उसको इल्यूजन था घर बनाएंगे, पर क्या मिल रहा है उसको, मिजरी. समझ रहे. और 3 चीज जो स्लाइड में बताया था वही रिपीट हो रहा है. देखिए सेम चीज. क्या बोलते हैं, बहुत सारे यूथ लोग सोचते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स इज चरम सुख ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. फॉर हाउ मच टाइम, 5 minutes. और उस 5 मिनट के हैप्पीनेस, टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर देते. क्वेश्चन, क्लियोपैट्रा एंड वो स्लाइड नहीं, आप उसी स्लाइड पे रहो. क्वेश्चन नहीं पहले वाला स्लाइड पे, टेम्पररी जेएफके वाला स्लाइड पे. जेएफके. ठीक है. तो इसी प्रकार जैसे मैंने बोला आपको, लाइफ पूरा ये कर देते, नॉट टेकिंग करेक्ट डिसीजन. नहीं लेंगे, लाइफ खराब हो जाएगा. वांट टू मैरी अ गुड डिवोटी गर्ल, व्हाई टू गो एंड मैरी समवन एंड देन होल लाइफ विल गेट डिस्ट्रॉयड. समझ रहे ना. शास्त्रों का ये करके आप आगे बढ़िए. व्हाई टू जस्ट गो रैंडमली जस्ट फॉर देयर एंजॉयमेंट, होल लाइफ गेट्स डिस्ट्रॉयड. बात पता है ये भी सब होता है क्या शादी के बाद, तो पता ही नहीं था पहले, फंस गया.
एक मेरा कलीग, हाँ, 2 of my colleagues were there. I worked in 3 projects in Cognizant. तो एक कलीग था, शादी हो गया मेरे से 5 years, जब मैं स्टार्टिंग 2016 का बात है, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में था मैं उस टाइम को, शादी हो गया। अभी 1 साल हो गया, पर देख रहा है कि बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ ट्राई कर लिया, बाद में आके सब ये किया, टेस्ट सब के पता चला कि उसकी जो वाइफ है, वाइफ को प्रॉब्लम हो गया, गायनेकोलॉजी प्रॉब्लम। क्या है कि उसके ओवरी में सिस्ट हो गया, आप तो जानते ही हो उसको। ओवरी में सिस्ट मतलब क्या, अंदर स्वेलिंग हो गया पूरा, निकलेगा नहीं। ओवरी में सिस्ट हो गया, अंदर स्वेलिंग हो गया, और उसके वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। देखो मिजरी, सोचा था कि अच्छा रहेंगे, मजा करेंगे, पर नहीं। सो एंजॉयमेंट विदाउट एनलाइटनमेंट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। समझ रहे? दिस व्हाट इवन माय one more colleague was there. I will not take his name. He was a very good friend of mine. उसको मैं इस सेशन में बुलाया भी था, पॉजिटिव थिंकर सेशन में 2017 में, 17-18 में। टेम्पल यूज टू कम, डेली सेशंस जो होता था टेम्पल में होता था, हमारा गुरु मंदिर में क्लास लेते थे, तो वो आया भी था, सब कुछ किया था। बट देन आफ्टर मैरिज एवरीथिंग चेंज। ओके, पहले मुझे दिखा था, पहले मैं देख रहा हूँ हर टाइम व्हाट्सएप स्टेटस में सब आई लव यू, ये वो ही सब चलते रहता था। ओके, वो सब चल रहा है। उसके बाद शादी हो गया, 1 साल हो गया, तो उसकी वाइफ कंप्लेन कर रही है, तुम पहले जितना मुझे आई लव बोलते हैं उतना नहीं बोलते हो, दिन में 3-4 बार बोलते हैं, 1 बार भी दिन मैसेज नहीं आता आई लव यू का मुझे। और वो मुझे बोल रहा है मैं काम करूँ क्या करूँ, वो मैं उसका प्रमोशन हो गया, टीम लीड बन गया ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गया, अभी टीम को संभालना है, अभी काम कर रहा है, वो वाइफ का व्हाट्सएप आ रहा है, अब मैं ये करूँ कि ये करूँ, क्या करूँ, वो मुझे आके बोल रहा है सब चीजें। वो तो पहले आते थे तो नहीं होता था, प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद अभी वाइफ को घूमने को जाना है, ऑब्वियसली छुट्टी नहीं मिल रहा है, तो बहुत ये वो करके हम सब लोग को रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अक्षय तुम ये वाला संभालो, क्लाइंट का मीटिंग है तो देखो, तुम ये देखो, हमने सब रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और ठीक है आई एम गोइंग टू थाईलैंड नाउ। थाईलैंड के लिए पूरा ट्रिप बना दिया, बहुत ये वो करके कम पैसा में कैसे लेके जाएंगे क्या है करके 2 कनेक्शन सब बना दिया। थाईलैंड के ट्रिप में गया, थाईलैंड के ट्रिप में गया, फिर हम लोगों ने उसके लिए गिफ्ट भी सब टीममेट्स ने कुछ गिफ्ट सब दिया था उसको, मैरिज का सब कुछ। उसके बाद जब वहाँ से आया तो क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैं उससे पूछा कैसा हुआ, क्या बोलता, अरे यार थाईलैंड तो और हाथ खराब हो गया, और वो लोग ऑक्टोपस को काट के देता है खाने में, ये देता है, तो कौन खाएगा वो सब चीजें, और वो पानी नहीं मिलता है, पानी हर टाइम खरीद के लेना पड़ेगा। यहाँ कहीं पर जाओ पानी आराम से मिल जाएगा फ्री में, पानी खरीद के लेना पड़ेगा, और वहाँ पर कुछ भी खाने लायक है ही नहीं। हम लोग बस चावल, कुछ नमक और उबले हुए आलू मांगते थे वो लोग से, वो भी बहुत महंगा था, और वो खाना पड़ता था पूरा सफरिंग। और जब यहाँ पर आया उसके बाद he got some problem in his testicles, you know testicles, your reproductive organ, it started swelling। क्या थाईलैंड में क्या किया पता नहीं, और उसके बाद मुझे रिजल्ट मिला 3 महीने के बाद, और कुछ फंगस जैसा कुछ वहाँ पर ये हो गया, and now he can't wear his undergarments also properly because it will pain। बाइक पे आता, डॉक्टर ने बोला stop going on bike, if you go on bike it will increase more। now अभी क्या करे, जिस 5 मिनट के सुख के लिए उसने सब कुछ किया था, अभी वो 5 मिनट भी सुख उसको नहीं मिलेगा, समझ रहे? फिर बहुत ये वो डॉक्टर पे जाके सर्जरी क्या क्या किया पता नहीं, उसके बाद नाउ ही गॉट 1 डॉटर 2022 में। देखिए कैसा सफरिंग, 5 मिनट के सुख के लिए लोग अपना लाइफ रॉन्ग डिसीजन लेके कैसा सफरिंग कर रहे। टेक डिसीजन अंडर गाइडेंस ऑफ समवन हु इज वेरी experienced spiritually and he knows with experience of guiding so many people like Madam Prabhu is there, Kumarila Prabhu is there. If you go with their guidance, such people, spiritual guidance, then you see so many married people are there in ISKCON. They're happy, and the outside people suffering. समझ रहे हैं ना? So this is very important. Enjoyment without enlightenment is full of miseries. एक और आपको बोलता हूँ, एक बहुत मजेदार किस्सा। ओके, हमारे साथ ही हुआ था, यू नो कृष्णनगर लोकल ट्रेन जो मायापुर में जाता है, हर टाइम भीड़ से भरा हुआ रहता है। ओके, तो अभी ट्रेन में चढ़ गए, मायापुर जाना है,
हम लोग किसी बस पकड़ लास्ट मिनट में ट्रेन में गए, भीड़ में जगह नहीं, पूरा क्राउड खचाखच भरा हुआ है। वो तो- कृष्णा नगर में भर जाते हैं। तो खचाखच भरा हुआ है सियालदह से, नहीं तो खचाखच प्लेन भरा हुआ है। तो बैग को थोड़ा ऊपर से उठा के कैसे तो करके अंदर जाके देख रहे कहाँ पर जगह है क्या है, तो खड़े हो गए जाके। यू नो सीट से 3 लोग का सीट रहता है, उसमें 4 लोग हाँ, बैठे हैं, 4 पता है ना। अच्छा तो अभी क्या हो गया, तो अभी देख रहे कुछ, मैं देखा थी आदमी उड़ गया वहां से साइड से, इमीडिएटली आके हम जाके वहां बैठ गए वहां पर जाके इमीडिएटली। और बैठेंगे तो पूरा सीट तो मिलता है नहीं, यू नो हमारे दो हिप है, उसमें से एक हिप ही बैठा है सीट के ऊपर, एक ही हवा में अभी, ठीक है। आधा आधा अभी पूरा जर्नी जाने तक उसको ढकेल रहा है अंदर, जाओ थोड़ा जगह मिलेगा। और ये सब स्ट्रगल में, ये सब मिजरी जो स्ट्रगल चल रहा है, उसके पीछे पता चला कि अगला स्टेशन उसका ही अभी आने वाला है। और स्टेशन आने के पहले पर ट्रेन तो और ज्यादा भर गया है, पहले से ज्यादा भर गया है। अभी तो निकल के जाना है अभी उसको, तो पूरा फिर से अपना बोझा उठाया और फिर गया जाके, फिर लोग को मार रहा है थोड़ा, किसके पैर पे पैर गिर गया, किसी को ये लगे, लोग उसको गाली दे रहा है, कैसा कर जाके पहले लगे उसको बाहर फेंके, फिर बाहर जाके उतरा ट्रेन के बाद फेंकी। ऐसा हालत है, टेम्पररी, इल्यूजरी एंड फुल ऑफ मिजरेबल। टेम्पररी सीट था, इल्यूजन मैंने बना दिया, मुझे बैठना ही है, जाके बैठ गया, क्या मिला, मिजरी। समझ रहे कैसे हम लोग को, मतलब ये हो रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाउ इज मटेरियल क्विकली मेटल प्लेजर इज मिजरेबल। आप लोग रीड कर सकते हैं, all material pleasure is miserable to acquire. मिजरेबल टू एक्वायर, मिजरेबल टू मेंटेन एंड मिजरेबल टू, समझ गए ना जो एग्जांपल्स मैंने दिया, हाउ इट इज मिजरेबल। अ क्वेश्चन, आशीष पढ़ो क्या है अ क्वेश्चन। If material pleasure is miserable to acquire, maintain and lose, then वेयर इज द रियल प्लेजर, where is the real pleasure? है ना। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड। Good question. हाँ, देखिए नेक्स्ट है मिराज। तो मिराज का डेफिनेशन क्या है, पढ़िए क्या लिखा है वहां पर। मॉनेटरी मोमेंटरी, जस्ट एक मोमेंट का हैप्पीनेस है, समझ रहे हैं। आई इल्यूशनरी ओशन जेली हाँ, मतलब एक इल्यूजन बना देगा आपको, आर हमें चाहिए। रिड्यूसेस इन कैपेसिटी स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, उसके बाद जो हैप्पीनेस कैपेसिटी है कम हो जाएगी, जो टेम्पररी है। एडिक्शन एक्वायर्स होप अगेंस्ट हाँ, और करूंगा तो मिल जाएगा, और थोड़ा करूंगा गधे के जैसे, और जब थोड़ा जाऊंगा मिल जाएगा, वो गधा हम लोग ही है। ठीक है, नेक्स्ट। जी ग्रेट स्ट्रगल करता है पाने के लिए। जी ग्रेट स्ट्रगल टू ऑब्टेनिंग हाँ, और ई एनहांसेस एंटेंगलमेंट, कंडीशन मतलब क्या, उसे हम फंसा के रख देता है। और यही स्ट्रगल के लाइफ में कब मौत आएगी पता ही नहीं चलेगा, कब हमारा वो चूहा काट देगा उस टहनी को पता नहीं चल जाएगा, ऑन द स्पॉट डेथ आ जाएगा। क्या किया, पूरा लाइफ वेस्ट किया। ये सबसे जरूरी। नेक्स्ट स्लाइड, वरुण रीड करो क्या लिखा है। The miserable sandwich of material pleasure. Huge layer of hankering. When will I get it? Next. When will I get it? Then Tiny layer of pleasure. I got it. समझ रहे हैं? पहले कब मिलेगा बहुत इच्छा था कार लेने का, कार मिल गया क्योंकि। उसके बाद नेक्स्ट, Huge layer of lamentation. Oh no, I lost it. सैंडविच की ऐसे, दिस इज द मटेरियल प्लेजर का नेचर। नेक्स्ट स्लाइड, Miserable pleasure. आप पढ़िए क्या लिखा है। There is just enough pleasure to keep us attached to the misery. Example, drinking delicious poison. पॉइजन पिएंगे क्या आप लोग, कितना भी मीठा रहेगा, डिलीशियस रहेगा, नहीं पिएंगे, पर वैसा लोग भी जाते हैं उसको, टेस्ट में अच्छा है ना, चले जाओ। ये सब एग्जांपल्स आप, आई थिंक यू आर एबल टू रिलेट व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ। ओके, अल्कोहल खाते लोग और वी विल नेवर एबल टू गेट रिड ऑफ द मिजरी। नेक्स्ट स्लाइड, Therefore, as long as we desire pleasure, we will never be able to get rid ऑफ द मिजरी। नेक्स्ट How is material pleasure used? Material pleasure is not new. नॉट न्यू, नया है क्या? अरे हम लोग 84 लाख लाइफ स्पैन से यही चीज करते आ रहे हैं, च्यूइंग द च्यूड, पुनः चर्बिता चर्वनाना, वही चीज खाते आ रहे हैं, वही चीज, वही मोबाइल फोन, वही लैपटॉप, वही कॉलेज, वही करते आ रहे हैं। क्या नया चीज है? वही कार, वही पत्नी, वही बच्चे, सब वही चीज है, पर नहीं, नॉट न्यू। देन Not in the sense objects. हाँ, वो ऑब्जेक्ट में नहीं है। ओके,
मटेरियल प्लेजर जो है वो हमको लगता है कि अगर मैंने वो आईफोन खरीद लिया तो मैं खुश रहूंगा, तो हमको लगता है आईफोन में हमको आनंद मिलेगा। नहीं, वो जो है वो इच्छा हमारे माइंड में है, नॉट इन सेंस ऑब्जेक्ट। वो प्लेजर माइंड में ही है। अगर माइंड को ही कंट्रोल कर लिया, टैकल कर लिया, तो मिजरी में फंसोगे क्या? नहीं। इफ आई गेट मैरिड टू दैट हॉट मॉडल देन आई विल बी हैप्पी। फिल्म स्टार यही करते हैं, एंड देन दे एंड अप इन डाइवोर्स आफ्टर कपल ऑफ इयर्स। ये तो आम बात हो गया आजकल, देखते हैं न्यूज में। Because they say तो हैप्पीनेस नॉट इन दैट गर्ल और दैट बॉय, Body. वो माइंड में ही आपका चल रहा है। मैं जाऊंगा तो मुझे मिलेगा, मिलता है नहीं मिलता है, देन Not existing anywhere except in the mind. ऐसे इन द माइंड। द नेक्स्ट स्लाइड, Remember time, temporary, illusory, measurable enjoyment. एंजॉयमेंट। दिस इज मटेरियल प्लेजर। ओके, तो नाउ कम टू स्पिरिचुअल प्लेजर। ये समझ में आ गया नेचर क्या है। 5 लेवल्स ऑफ एंजॉयमेंट बोला, नेचर प्लेजर बोला, नाउ स्पिरिचुअल प्लेजर। तो स्पिरिचुअल प्लेजर इज द प्लेजर ऑफ सोल। एंड व्हाट इज सोल? सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, है ना? कृष्णा का पार्ट है। कृष्णा इज परमानेंट और टेम्पररी? Permanent. Eternal is God. So we are also Eternal. eternal. So the happiness should be Eternal. eternal. That is the actual happiness. The permanent happiness should be eternal and permanent. It is derived only from doing bhakti. भक्ति किसके कनेक्शन में है? कृष्णा के कनेक्शन में। हम लोग वो करेंगे, we'll be happy. एक बार एक आदमी, हमारा गुरु पहले भी बोले थे क्लास में, पता नहीं आप लोग पता है कि नहीं। एक बार एक आदमी आके प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद, स्वामी जी, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, ओके, ये सब कर रहे हैं, मंदिर आप बना रहे हैं, इतना क्लास सब कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट इफ यू कम टू नो दैट आफ्टर दिस लाइफ टाइम देयर इज नो कृष्णा, कृष्णा को है ही नहीं, तो क्या होगा? प्रभुपाद ने बोला कोई बात नहीं, अगर कृष्णा नहीं है तो भी क्या खराब है, हम तो मार्बल के फ्लोर के मंदिर में रहते हैं, इतना अच्छा जब प्रसाद 3 बार खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, धाम में जाते हैं, घूमते हैं, मजा करते, लोग आके हमको माला डालते हैं गले में, हमारे पैर छूते हैं, हर रोज कोई फेस्टिवल। सेम थिंग इन वॉइस ऑल्सो, सेम थिंग हैपन इन वॉइस ऑल्सो। वॉइस जस्ट लाइक अ टेंपल का यूनिट जैसा ही है, मार्बल फ्लोर पे रहते हैं, रोज नाचते हैं। कौन रोज नाचता है बताओ? आजकल नाचता है, लोग तो पैसा देके पब में नाचने के लिए जाते हैं, 1000 रुपए गटर में गिरे हुए मिलेंगे अगले दिन आपको। हम तो रोज नाचते हैं, 3 बार से प्रसाद खाते हैं, अब तो एक्सपीरियंस है, घूमते फिरते रहते हैं, तो ये तो एंजॉयमेंट ठीक हुआ कि नहीं? कृष्णा नहीं तो भी क्या हुआ, तो मजाक करे लाइफ में, है ना? फिर प्रभुपाद जी ने बोला, बट अगर कृष्णा है पता चला आपको लाइफ के बाद, तभी तेरा क्या होगा? अरे कालिया, तो फंस गया, समझ रहे ना? कृष्णा नहीं तो भी हम तो मजाक कर रहे हैं, कृष्णा अगर है तो तेरा, तू कुछ नहीं किया लाइफ में, फंस गया, तू तो फंस गया, तू बस मेहनत किया, समझ रहे ना? तो संडे को या मंडे रोज खाओ अंडे और फिर मिलेंगे यमराज के डंडे, यही होने वाला है तेरे साथ। तो कृष्णा कॉन्शियस हैप्पीनेस एक्चुअली गिव्स एंजॉयमेंट विद एनलाइटनमेंट। तो आपके वॉइस में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स रह रहे, आरंट दे हैप्पी? Very. तो क्यों वहां पर रहते बताओ? रहता है कोई इतना स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया, सो मेनी वॉइसेस आर देयर, so many students, because they're happy, so they're staying there, because happiness is come with enlightenment, not with suffering. Okay, just for example, the prasad we take, what is that? Tasty hai? We get so happy of taking prasad. That prasad is actually a vaccination against the sins that we will do or we have done. आप प्रसाद खाओ, जितना पाप पहले किया था वो सब पाप चला जाएगा, और बिकॉज ऑफ ईटिंग प्रसाद योर कॉन्शियसनेस विल बी ट्यून्ड, बिकॉज प्रसाद नथिंग बट कृष्णा, कृष्णा के मुंह से आया है प्रसाद, आप वही खा रहे हैं, कृष्ण भगवान ने खाया वही खा रहे हैं, भगवान का टच है उसके अंदर। सो बाय ईटिंग प्रसाद माइंड विल बी सो पीसफुल, सो काम, कि पाप करने का भी आपको मन नहीं करेगा, और सच प्रसाद खा रहे हो। देखिए, एंजॉयमेंट विद एनलाइटनमेंट, डांस कर रहे भगवान के लिए, मजा कर रहे, मजा आ रहा है, बॉडी भी फिट हो रहा है उसके वजह से, कोई यहाँ वॉइस में जिम में आता नहीं, कुछ नहीं कर रहा, एवरीबॉडी इज फिट, हैप्पी। अब वही आप संकल्प लो कि मैं रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊँ, कितना तेज जा पाओगे? हाँ, 1 महीना 2 महीना। मेरा ये मैनेजर था पहले, मैं वॉइस के पहले मैं वहाँ रहता था ऑफिस के बाजू में, तो बोला चलो अक्षय सुबह सुबह ना हम लोग जॉइन के लिए जाएंगे, विंटर स्टार्ट हो गया अभी। तो मैं बोला नहीं अब मेरे को ऐसी इच्छा नहीं है, मैं मंगला आरती मंदिर में करूँगा। मैंने तो वो करते थे वो लोग,
2-3 लोग जाते थे रोज रोज उसमें, अब 2-3 में से एक से निकल गया, अरे यार आज नहीं आने मन नहीं कर रहा, अब 2 लोग जा रहे कंटिन्यू कर रहे, करेंगे, उसमें से दोनों का एक और जन निकल गया। अब जो मैंने मुझे बोला था करेंगे करके, उसी को नहीं हो रहा है करने के लिए, ये मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, मजा नहीं आ रहा है। आप कर रहे हैं बॉडी को फिट रखने के लिए, जॉगिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्या? वो इट इज लाइक अ थिंग टू यू, अभी करना है जबरदस्ती करो करके, और वो डांस करो भगवान के लिए, आप वो कभी नहीं छोड़ेंगे, एवरीडे करेंगे, मुझे मजा आ रहा है, बॉडी भी फिट है। तो सेम थिंग, एनीथिंग वी आर डूइंग कृष्णा कॉन्शियस, लाइक ईटिंग प्रसाद और dancing or whatever thing we are doing, it is permanent, it is real, it is practical, you practical effects आपको देगा. This is called spiritual enjoyment. Okay, so then what should I say more? Yeah, 5 minutes with me. Yeah, so the entire youth community, no, it is doing the same thing. It is running after enjoyment without enlightenment, and the result is miserable life. खुद ही मिजरेबल होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को मिजरेबल करते हैं, और सबको मिजरेबल करके मरने के बाद ही मिजरेबल लाइफ ही मिलेगा. तो एक लड़का पूछ रहा था कि हम लोग बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर सकते क्या? इतनी जल्दी बुढ़ापा कैसे डिसाइड होगा? हाँ, वो तो अब मैं आपको बोला था लास्ट से पहले. फिर भी कोई नया लड़का बुढ़ापा नहीं करता, तो पूछा, उनसे पूछा कि कॉलेज में बुढ़ापे एडमिशन मिलता है क्या? मिलता है एडमिशन कॉलेज बुढ़ापे में? नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? नहीं कर सकते. हाँ, टाइम पीरियड होता है. क्यों नहीं मिलता? टाइम पीरियड तो है, पर क्यों नहीं मिलता? मेन रीजन क्या है? उसमें दिमाग हमारा उसकी ग्रास्पिंग पावर, जो अंदर लेने का शक्ति है, फिर जो देना चाहता है वो नहीं ले पाएगा, वो कैपेसिटी नहीं है उसका, मिलता नहीं है. क्यों नहीं मिलेगा? ये पूरा लाइफ टाइम तो इतना सारा चीज किया है ना, वो माइंड इज लाइक टास्क में, हार्ड डिस्क में पूरा वही भर गया है, कचरा भरा हुआ है पूरा माइंड में, तो कैसे मिलेगा बताओ? सेम चीज, आप पूरा लाइफ टाइम पूरा अगर पाप में जीवन में बिता दिया, कर्मियों के जैसे जो लोग कर रहे हैं, कर्म ही भगवान है, वर्क इज वर्शिप लोग बोलते हैं, केरला के लोग, रॉन्ग, फुल्ली फुलिश फिलॉसफी, रॉन्ग फिलॉसफी. वर्क इज वर्शिप, बहुत मुश्किल होता है. वर्क इज नॉट वर्शिप, वर्क कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वर्शिप, नॉट जस्ट वर्क इज वर्शिप. आप ऐसे मेहनत करो, सब पाप करो, पूरा अंदर हार्ट डिस्क भर गया है, फिर जब वो भक्ति करने को बोले कर पाएंगे? भक्ति कचरा भरा हुआ है, अंदर जगह ही नहीं, कैसे जाएगा अंदर? ये हम लोग पहले वॉइस किसी और जगह में था, तो वो जो ओनर की मम्मी थी, ओल्ड लेडी, सुमित प्रभु जाकर उनको सिखा रहे थे, हरे कृष्ण मंत्र जप करो. सुमित प्रभु, यू नो राइट, इन वॉइस he always does such things only. he target old people or some married people and he will go and he will preach to them. So तो कॉलेज में भी बहुत प्रीचिंग किया था. ये सब लोग गंदी गंदी बात करते हैं तो तो सुमित प्रभु जाके उसको बोल रहे थे कि आप हरे कृष्ण मंत्र जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सिंपल है ना, पर वो माता जी को समझ में नहीं आ रहा है. वो कुछ मतलब महीनों के बाद मर गई, पर वो हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं कर पाए. हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, वो 16 शब्द का मंत्र भी उसको याद नहीं कर पा रही हो. पूरा लाइफ तो पाप किया है ना, भरा हुआ हार्ट से पूरा. अच्छा चीज अब देने को जा रहे हैं, घुस नहीं रहे अंदर, समझ रहे? तो जो लोग बोलते हैं बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है. अगर आपके माँ बाप बोलते हैं कि आप अभी भक्ति मत करो, बाद में करो, अभी एज नहीं है, सीरियसली तो क्यों कर रहे हो? ठीक है, आपका तो एज है, आपको सब कुछ मिल गया, बच्चे भी अच्छे काम कर रहे हैं, सेटल है, सब कुछ हो रहा है, अभी आप भक्ति क्यों नहीं कर रहे? क्रॉस क्वेश्चन करके पूछो, आपको भगा देंगे, गुस्सा करके आप मार के भगा देंगे आप. ज्यादा फुटानी पर समझ रहे हैं ना, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक. मेनी पीपल डू लाइक दिस. नाउ पुअर आदित्य पेरेंट्स वही बोल रहे हैं भक्ति मत करो. वो तो नहीं कर रहे, वो तो सब कुछ उनके पास जॉब है, बच्चे भी अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, वो तो नहीं कर रहे. समझ रहे ना हाउ माइंड इज चीटिंग, कैसे आप चीट हो गए. समझ लो उसको, पर बोलना नहीं पेरेंट्स को ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करना नहीं है. करेंगे तो आई तक ऐसे ही मिलेगा, आई तक क्रॉस क्वेश्चन किया था, फंस गया वो, मिलेगा. समझ रहे? ठीक है. सो व्हाई, तो दिस इज very important to do in our youth age only, because in our life has begun
हम लोग यंग है, हम लोग ढूंढ रहे कुछ डेवलप करने के लिए, कुछ जुनून है, खून गर्म है, कुछ करना है, वो हम लोग के अंदर है अभी। अगर यही करेक्ट टाइम है भक्ति करने का अपने एजुकेशन के साथ। दैट्स व्हाई दिस वॉइस का जो ट्रेनिंग सिस्टम है, इट इज गिवन इन इंजीनियरिंग लाइफ ओनली। 4 साल आप पढ़ाई भी करो और भक्ति भी करो, एंड आफ्टर दैट यू सी विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू गो, यू विल लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, यू विल नेवर फॉरगेट कृष्णा, एंड कृष्णा इज देयर विथ यू। कल मार्ग बोलते हैं ना आप लोगों को, कृष्णा अगर हमारे साथ रहता है तो सूरज चक्र हमारे पीछे है, डर है ही नहीं किसी बात का। आपको भेज दिया कोई साउथ इंडिया में कोच्चि नाम के कोई जगह में, आपको कुछ है नहीं, खुद से खाना पका के आप खाएंगे, आप खुश रहेंगे, यू नो कृष्णा इज देयर विद मी। जॉब मिलने के बाद कई बार भेजेगा, TCS नो इट जनरली पुट्स द प्रेशर टू सम रिमोट प्लेसेस, जानबूझ के। बहुत लोग हायर किया है ना, फिल्टर भी करना है वो लोग, ऐसा रहता है। कोई गेट फिल्टर्ड आउट, वो आर वीक, फिर वो फिल्टर्ड कॉग्निजेंट इतना हाई लेवल टेस्ट बना कर रखेगा, इफ यू फेल इन 3 अटेम्प्ट्स क्लियर नहीं किया, निकाल देगा। दिस इज द बिजनेस बिटवीन कॉलेज एंड द कंपनी, नथिंग एल्स। कॉलेज नीड्स नंबर्स, नंबर्स मिल गया फर्स्ट में आधा एडमिशन होगा, पैसा किसको मिलेगा? कॉलेज को। लाइफ कैसा खराब हुआ? those who have got sacked from the company, समझ रहे? This is why this training model of voice is very very important. This will only means shape you. आपने बाम्बू को देखा है ना, बैम्बू से बहुत सारा चेयर्स बनता है, बैम्बू के बांस से अलग अलग चीज बनता है, तो कौन से बैम्बू से बनता है वो? यंग ओल्ड तो वो होगा बूढ़े बैम्बू से करेंगे तो टूट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा, होगा नहीं। So young bamboo को ही आप जो fresh bamboo का shape दे सकते हैं। Similarly, this is the time to shape yourself. अगर खुद को भी shape नहीं करेंगे, बाद में आप चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। You know many examples. आपके साथ ही रहते हैं, आप जानते ही हैं। मैं उनको बहुत बोला, shape करो, नहीं हो रहा है प्रभु, इतना प्रेशर नहीं हो पाता है, घर जाओ तो और टेंशन। उनसे भी खराब वो भी थोड़ा कम है एक्चुअली इनका, इनसे भी खराब सिचुएशंस है हमारे ऑफिस में आके रहेंगे, सुबह 9 बजे सबसे पहले आएंगे, सबसे लेट रात में 9-10 बजे निकलेंगे। क्यों? घर में किट नहीं सुनना है मुझे, बच्चों और बीवी को, यहीं पर रहेंगे। इतना प्रेशर, इतना टेंशन, क्योंकि खुद को शेप नहीं किया ना जब जवानी में, तो बुढ़ापा भी आफ्टर मैरिज पछता रहे। सेम थिंग लाइक ब्रिक, यू नो ब्रिक ईट है जो बनाते हैं, तो अभी जब मैंने समझी ईट बना लिया, भट्टी में गरम करके बना दिया, तो उसका भी क्या शेप बदल सकता हूँ उसका? आई कांट चेंज शेप ऑफ द ब्रिक। जो मिट्टी है, रॉ मिट्टी, उसी का मैं शेप बना सकता हूँ, उससे मैं कुछ बना सकता हूँ। सेम थिंग, जस्ट डिफरेंट टाइम मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार यूथ शुड नॉट बी वेस्टेड, okay, but if the youth is wasted by the burning fire of old age, then we can't give shape to it. इसको शेप नहीं देंगे, बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं। बट इफ दिस बर्निंग फायर को अभी हम लोग शेप देगी, हमारे खुद को शेप करेंगे यूथ को, देन वी विल बी हैप्पी। सेम चीज आप तो इस्कॉन में देख ही रहे हैं। इस्कॉन में आप मंदिर में, आप शायद से कोलकाता मंदिर में आए हैं, और यहाँ पर भी आप देखिए हल्दिया इस्कॉन में, इस्कॉन जब मंदिर है, हम जाएंगे कल वहाँ पर, ओके। जो भी सो मंदिर में आके देखिए, मैक्सिमम लोग कौन दिखते हैं वहाँ पर? आप गृहस्थ, बट मैक्सिमम पीपल इफ यू सी दे आर यंग ओनली, ओल्ड पीपल कम दिखेंगे। मैक्सिमम पीपल आर देयर, गृहस्थ आर देयर, मैरिड पीपल आर देयर, बट ऑल ऑफ देम आर आल्सो यंग ओनली। मैक्सिमम पीपल आर यंग, बूढ़े लोग दिखते हैं बहुत कम। because those intelligent class of people who understood that we can shape our life in the youth age only, they are only coming. Otherwise the whole world is going after suffering. Iskon temple is not a temple that आप कोई भी सो मंदिर में जाओ, आप वहाँ पर कुछ एक्टिविटी मिलेगा, कीर्तन चल रहा है या फिर भगवान का आरती हो रहा है, कुछ हो रहा है। दूसरे टेम्पल्स में जाओ आप देखिए, कुछ कोई आता भी नहीं, मजा नहीं आता है, बस प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे, बोरिंग लगता है। लोग का मन ही नहीं करते मंदिर में आने का। किसका मन करता पता? बच्चों मन करता है मंदिर में आने का? नहीं, मेरी मम्मी फोर्स कर लेके जाती है, मन नहीं करता है। बहुत सारा मंदिर होता है जो मंदिर खोला है बिजनेस के लिए। सो इस्कॉन इज नॉट रुपया दो, भगवान का सुंदर दर्शन होगा, सामने से दर्शन होगा, पैसा कमाते लोग। तो इस्कॉन इज नॉट अ टेम्पल दैट
वहाँ पर दिन में एक बार पुजारी आके घंटी बजा के फिर चला जाएगा और फिर सब कबूतरों पर बैठ के वहाँ पर खराब कर देंगे नीचे। ऐसा नहीं है। ISKCON is an institution that Prabhupada has made to train yourself and get placement. कहाँ प्लेसमेंट मिलेगा? The spiritual world. समझ रहे? This is a training institute. अभी आपका उसमें एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में, खुद को ट्रेन करो, अच्छे भक्तों के साथ रहो, फर्स्ट बेंचर्स बनो, टॉपर बनो, अब लाइफ को अच्छे से लीड करो और पेरेंट्स को भी भक्ति में लेके आओ ग्रेजुअली, नॉट नाउ, धीरे धीरे। एंड ऑल ऑफ यू गो बैक टू स्पिरिचुअल प्लेस होके जाओ भगवान के पास। क्यों सफर करना है यहाँ पर? समझ रहे ना? सो डज ट्रेनिंग हैपन इन ओल्ड एज? नो। वो ऐसे ऐसे लोग से मिला था कि लाइक देयर वाज वन ऑफ माय ग्रैंडफादर कजन, मतलब रहते हैं ना ग्रैंडफादर के भाई, हैदराबाद में मैं गया था। वो बोलते क्या अक्षय तू ये सब कर रहा है आजकल, कहता है तुम सन्यासी बन गया, भक्ति विक्ति कर रहा है, इतना ये सब क्या है, हर टाइम देखता हूँ गीता पढ़ता है, यूट्यूब में क्लास दे रहा है, ये हो रहा है, सब कर रहा है। तो मैं बोला यही तो अच्छा है लाइफ। अभी जिसको मैं सब समझाया आपको समझ में नहीं आ रहा है। गीता पढ़िए, अरे नहीं दिखता नहीं उतना, बहुत छोटा छोटा है, आँख में दिख नहीं रहा है, कोशिश नहीं करना चाहिए। फिर उनको बोले नहीं, थोड़ा इच्छा था उनके अंदर, ठीक है, जो समझा थोड़ा इच्छा जाग आया। फिर ISKCON हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर है, जॉइंट फैमिली है, 4 किलोमीटर दूर ISKCON हैबिट्स का टेम्पल है महाराष्ट्र, वहाँ पर हैदराबाद। तो वहाँ पर लेके चलिए, जाएंगे, नहीं अभी घुटना दर्द हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उबर का दाम भी बढ़ गया है, आजकल बहुत पैसा लेता है वो लोग, सब सेविंग चलाएगा तो घर के लिए चलेगा। बच्चों को तो भेज दिया, मेरे दोनों मामा USA में है, वहां पर भेज दिया है बच्चों को, बच्चे कभी आते नहीं। 7 साल पहले आए थे बोल रहे थे, अभी तक आए नहीं फिर से। वंस यू गो टू दैट प्लेस, उसका विजन इतना चमक दमक है ना, आपको इंडिया रहेगा सिर्फ बेगर कंट्री, योर ओन कंट्री आपको भिखारी लगेगा अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में गए। दैट इज द थिंग, वंस यू गो दे विल नेवर वांट टू कम बैक हियर। भले ही आप वहां पर जाके टॉयलेट साफ करने नौकरी करो, पर तुम इंडिया में नहीं आओगे। कहाँ पर काम करते हैं? मैं IBM नाम की कंपनी में काम करता हूँ, इंडिया में आके सूट बूट पहन के आएगा, वर्किंग इन IBM। पूछो क्या काम करते हैं IBM? मैं झाड़ू मारता हूँ क्या, फिर मेंटेनेंस का काम करता हूँ, वो नहीं बोलेगा, वो IBM में काम करता हूँ। क्या काम कर रहा है IBM में? बस जस्ट फॉर दैट टेम्पररी इल्यूजनरी प्लेजर, अभी तक नहीं आया। एंड ही इज नॉट एबल टू प्रैक्टिस भक्ति ओवर हियर। सपोर्ट नहीं है कोई, बॉडी खुद को सपोर्ट नहीं कर रहा है, घुटने दर्द हो रहे, देख नहीं पाता है। प्रसाद अच्छे से खाओ, अच्छा प्रसाद बनाया था, गुलाब जामुन था, स्वीट्स था, सब कुछ बनाया था, नहीं खा सकते, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, पचा नहीं होगा, ज्यादा चाट का आइटम खाए तो गैस हो जाएगा, क्या करे? प्रसाद भी नहीं खा पाते, ना गीता पढ़ पाते हैं, ना मंदिर में आके क्या डांस करेंगे बताओ? कर पाएंगे भक्ति ओल्ड एज में? खुद के बच्चों को दूर भेज दिया अपने से, अब जाके लिए बुढ़ापे में हस्बैंड वाइफ सफरिंग कर रहे, चाह के भी नहीं कर पाएंगे। देखिए उनको इच्छा है करने की, जब मैं बोला समझाया, ही गॉट इंटरेस्ट, बट स्टिल इज नॉट, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, माइंड सपोर्ट नहीं कर रहा है। दिस इज हाउ प्रॉब्लम वी फेस। और जितना भी मेस और हॉस्टल है आप देखते हैं आपके कॉलेज के पास, क्या होता है वहां पर 10-10 बजे तक गटर में पड़े हुए रहते बच्चे। आपके पहले जो सीनियर्स थे 10 बजे सोते थे, हम लोग जाते थे, जाके उनको नॉक करते थे कि अरे थोड़ा मंगला आरती में आओ और चैंटिंग करो। हम लोग के सीनियर्स, हाँ, तुम 1-2 बजे सो ना, मैं नाम नहीं लूंगा ना, जो आपके कोरोना के पहले का टाइम का बात कर रहा हूँ, बिफोर कोविड। सुबह की देर में माई सेल्फ, सुमित प्रभु, गोविंद प्रभु, नो, वी यूज्ड टू गो देयर एंड वी I'll just come in 2 minutes खत्म करके। तो वो सब लोग हम लोग जाते थे, जाके सब लोग जैसे आपको बुलाता हूँ ना, एक मिनट, यस प्रो जी, कमिंग प्रो जी, या 2 मिनट्स है कमिंग। सो हम जाते थे, पर वो लोग बंद करके रखते थे, दरवाजा खुलते नहीं थे, फिर सुबह रात में 2 बजे सोया रहेगा, अभी सुबह तक उठ नहीं पा रहा है। दैट इज व्हाट मींस इट्स हैपनिंग। तो ओल्ड एज में तो कर नहीं पाएंगे, अभी भी नहीं कर पा रहे। नाउ रिसेंटली राहुल एंड वी वेंट टू सम मेस, बच्चों को भक्ति नहीं करना है, मेस के मालिक को बोल के रख दिया, देखो ये लड़का ना 6 बजे हमारे रूम में आएगा और हम तो भगवान का नाम का जाप करेगा,
उस टाइम को आओ और आके वो लोग को भगा दो वहां से। मैच का मालिक को देखो कैसे बच्चे देखो। किया वो लोग हाँ किया। मैं और विवेक गए थे, मैच का मालिक आया चिल्लाना, भाई ये वो नहीं चलेगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं चलेगा। अच्छा तो इसमें हमारा लॉस है क्या? नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट समवन टू कृष्णा। ठीक है, हम नहीं जाएंगे यहाँ पर। लॉस किसका होगा? होता है लॉस को। दारू सिगरेट अभी नहीं समझेंगे, बाद में इसको समझ में आएगा। दिस इज हाउ द यूथ इज गेटिंग कंप्लीटली टुवर्ड्स फॉल्स एंजॉयमेंट की वजह से टेम्पररी इल्यूजन फुल ऑफ मिजरी एंड सफरिंग। और जब So अच्छा खाना भी this खाते हैं। enjoyment with enlightenment is a privilege for youth, not for old people. Okay, because you cannot remove the garbage from your hard disk in the old age. कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। This is the opportunity you have got. Adidas पता है क्या है? ब्रांड। Brand. इसका फुल फॉर्म क्या है? पता नहीं। Adidas का फुल फॉर्म है All day I dream about शाम शाम शाम। Adidas का full form. So when you're Krishna conscious, no, in everything, Jayapal Swami Guru Maharaj बोल रहे थे, in everything, in every aspect, you will find Krishna is there. Everything. You'll use everything. Laptop है, using it for work के laptop है काम के लिए. But I'm also using Krishna सेवा. Laptop का भी उधार हो गया. Mobile phone सेवा में यूज हो रहा है. हर एक स्टेबल, हर एक चीज सेवा में यूज हो रहा है भगवान के. समझ रहे ना? Even the people who we meet, we also engage in Krishna service. कुछ नहीं, ठीक है, आप बस जाकर सबको पानी सर्व करो, बस वो बस सेवा करेगा, उसको इतना ये बेनिफिट मिलेगा. So connect everything with Krishna and see how life will be happy. Now you are here for 2 days. You speak with these people of this voice, okay, Haldia voice. उनका लाइफस्टाइल को देखो, how they are leading. पूछो उनसे, आर दे हैप्पी और दे आर जस्ट प्रैक्टिसिंग भक्ति, वो खुश है कि नहीं है? नहीं तो 60 स्टूडेंट्स रहते नहीं यहाँ पर वॉइस में आके, 60 तो यहाँ पर है, उसके अलावा बहुत सारे जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, दे वांट टू कम एंड स्टे हियर बट दे कांट बिकॉज़ दे आर समवेयर एल्स. सो व्हेरेवर दे आर गोइंग सर्चिंग वॉइस ओनली, वॉइस कहाँ पर है, वहाँ पर जाके रहेंगे. वी आर आल्सो ओपनिंग अ वॉइस हियर इन टेक्नो इंडिया नियर दैट, सो whoever is getting job like Rahul Ruban or somebody, they also have facility to stay over there. वॉइस में रहेंगे. समझ रहे हैं ना? So is youth meant for enjoyment or enlightenment? Enlightenment. So enjoyment with enlightenment will give you everlasting happiness and bliss. Otherwise, temporary, miserable and full of suffering. Okay? So I end over here. I give some more time, 5-10 minutes. Any questions you have? Anything you can ask. Any doubts? इस टॉपिक से थोड़ा हैवी लगा क्या? नहीं ठीक हाँ? ठीक था bro. Ask करो। Any questions, comments या doubts, any feedback? वो विराज का ये और जी क्या बोला था? विराज विराज का ए है एडिक्शन. ओके, टू गेट दैट थिंग. सो एडिक्शन, ओनली एडिक्शन. ओके, मतलब माइंड में रहेगा चाहिए कार लेने का. एंड देन जी इज ग्रेट स्ट्रगल टू ऑब्टेन इट. अब मेहनत करेगा गधे के जैसे. जॉब जाएगा तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा. ठीक है, अब प्रश्न क्या हुआ? तो उसको बंद कर दो रिकॉर्डिंग.